everyone and my all colleagues. I am Mrs. Deepti Prabha as a resource person. Welcome to my session, Integration of ICT. Welcome to my session, Integration of ICT in Teaching and Learning and Assessment. ICT in education, how it is transforming learning. First, we see the ICT. Full form of the ICT is Information Communication Technology. Technology has disrupted all areas of our life and education is no different. Especially after the pandemic, more schools are looking towards online learning as a permanent teaching method along with traditional teaching method. We need technology in every classroom and in every student and teacher's hand because it is the pen and paper of our time. Now ICT is the pen paper of our time and it is the lens through which we experience much of our world. ICT opens a world of possibilities for the betterment of the education sector, but before we learn of its benefits, we need to understand what is ICT in education management. In these articles, we will see ICT in education, what is the need and importance of ICT in education, and let an integrated ICT solution provided. For today's lesson, we will be talking about ICT and its impact on our society. At the end of this lesson, you will be able to state the definition of ICT and describe the impact and importance of it on our society. What is ICT? On its literal meaning, ICT stands for Information and Communication Technology. It is a set of tools and resources. It is also used to create or distribute, store, manage information and communication. Let's identify together the tools. These are the following tools: television, computer, radio, telephones, and the internet. ICT brings us closer to our loved ones. It allows us to connect to people away from us. Let's have a glimpse on the impacts of ICT on our society. ICT gives impact on our personal, school, and community. ICT makes its way of communication easier, faster, and cheaper for our friends and relatives who live far from us. You can also do online shopping. While at school, pupils are equipped to communicate, connect, collaborate, and above all, learn in this digital world. In our community, it helps us to be updated with the weather disturbance, news, disease control, disasters, and other areas of community concern.
Thank you for watching. ICT in education. ICT in education, ICT or information and communication technology broadly refers to tools and services that handle and communicate information. Some of the most common example of ICT are mobile phones, television, satellites. These are the examples. हम लोग आज के समय में ये सारी चीज़ कॉमनली यूज़ करते हैं और जो सैटेलाइट सिस्टम है और ये सब जनरली इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ होता है और इसको करके हम लोग का जो काम है आजकल बहुत आसान हो गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका बहुत इससे डेवलपमेंट हुआ है। ICT is widely used in our everyday life and need is overgrowing in the education sector. Images, audio, videos, presentation on combination of these used to teaching constitute ICT in education. So, ICT in education meaning would be information and communication to improve the delivery of education in every way. इसके वजह से हम लोग कोई भी कहीं भी कितने भी दूर जगह में है, रिमोट एरियाज में है, वहाँ हम लोग शिक्षा को पहुँचा सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के मेथड्स, या फिर कहीं से भी कोई एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई भी जो ट्रेनिंग है वो हो सकता है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन isn't something new, but not many have information about ICT in education industry. This is because ICT comes with several constraints, one of which is ensuring access to electronic devices every kid, but with more institutes involved in ICT, the problem should soon be resolved. आजकल जितना भी इंस्टीट्यूट है सब ICT ये इसका यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिससे कि उसका और भी डेवलपमेंट हो। अगर ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है तो जनरली उस इंस्टीट्यूट में या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो जनरली जहाँ पर ये सारी सुविधाएं रहती है वहीं सभी लोग जाना पसंद करते हैं। Today's classrooms are full of young minds who are technologically conscious by using a combination of audio-visual learning resources alongside the traditional blackboard. An institute can facilitate better learning opportunities for students. पहले के समय में हम लोग जनरली ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते थे, जो कि अभी भी यूज़ करते हैं, बट अब जो स्मार्ट बोर्ड आया है इससे ज़्यादा जो है टीचिंग इफेक्टिव हो गया है। बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उन लोगों को लगता है कि वो कुछ अच्छा सीख पाएंगे। For these children, electronic devices have become a way of life by using ICT classroom, and children can be eased education using tools they are already familiar with. और आजकल बच्चों जितने बच्चे हैं सब वो लोग इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी डिवाइसेस है उसको अच्छे से उससे फैमिलियर है, उसको यूज़ करना जानते हैं एंड दे कैन इजीली मैनेज। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग लर्निंग फन, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ICT इन एजुकेशन सच एज एजुकेशन फॉर एवरीवन। ICT के वजह से एजुकेशन सभी जगह सभी लोगों के लिए संभव हो गया है। आजकल टेलीविजन में, यूट्यूब में बहुत सारे एजुकेशन का वीडियोस आते हैं जिससे लोगों के लिए सबके लिए इजीली हो गया है। ICT provides the flexibility and availability of the learning material to all students. While all resources are available in classroom, students also access them outside the school. Next video.
I need to fix myself up. This is no way to live. So bored of the war zone and everything. I'll remove this COVID-19 thing and... Hey, are you winning, son? No, Dad, games are just so boring now. Oh yeah. Well, I don't know if you're interested, but a friend of mine has a summer job opening for youth and is willing to give you the spot. Oh, really? Yeah, only if you're interested though. I don't know, Dad. Alright, just let me know soon, because there are a few people wanting to get in on the job. Actually, you know what? I'll do it. Alright, I'll call my friend immediately, and you can start as early as tomorrow. Alright, sounds good. Education for everyone. Education for everyone. ICT provides the flexibility and availability of learning materials to all the students. While all resources are available in classroom, students can also assist outside the school. यहाँ पर जो ICT प्रोजेक्ट में बहुत सारे हम लोग को बहुत सारे टॉपिक के बारे में जानकारी मिल जाते हैं और इसको सभी लोग आसानी से देख सकते हैं और ये कोई भी स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकते हैं एंड दिस स्पेशली बेनिफिट्स स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर और हैव learning disability. Such as student can go over the lesson as many times as they need and understand their subject thoroughly. यहाँ पर जो स्टूडेंट कमजोर होते हैं वो एक चीज को बार-बार अपने वीडियो के चीज को रिपीट करके इस चीज को देख सकते हैं और ये होने के लिए वो सुविधाजनक है. And the availability of learning resources also benefits students who can't afford attend classes every day. For students with financial constraints, lots of electronic devices, especially made for education, are available. और जिन के पास resources नहीं है education के लिए, वो लोग भी ये अगर उनके पास ये सुविधा है, तो वहाँ पर ये सीख सकते हैं. जिनको पैसे की दिक्कत है, वो इजीली ये सारे चीज को ये मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू इसको आसानी से देख के पढ़ के सीख सकते हैं और अपने टॉपिक के बारे में जानकारी ले सकते हो. इससे उनको कम खर्च आएगा एंड दे कैन इजीली लर्न और अपने जो भी टॉपिक से रिलेटेड एजुकेशन है, शिक्षा है, वो प्राप्त कर सकते हैं. Efficient teachers training. ICT in education management is the only mean to education students but also the teachers. जो टीचर्स हैं उनको अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा जानकारी चाहिए, वो भी इससे पहले देख सकते हैं, सीख सकते हैं. दे कैन taught the student and the in
efficient teacher training, ICT in education management is not only meant to educate students but also teachers. And the regular teacher training program are essential, and ICT helps train them in their own institute through online learning. और ICT के हेल्प से हम लोग जो टीचर्स को भी ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू जो भी टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. They can so easily taught the students and learn as per your convenience. प्रभाव है आईसीटी और सीआईटी एक ही है, नहीं अलग अलग है. स्टार्टिंग है. बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आईसीटी की मदद से एक बेहतरीन दुनिया की तस्वीर कैसे बनाएं. आईसीटी परिवेश के बारे में मूलभूत समझ का विकास. कितना अच्छा होता कि लादियों की तरह हमको भी एक जादुई चिराग मिल जाता जिसका जिन हमारे सारे आदेश को मानकर सारे काम चुटकी बजाते ही कर देता. बच्चों, ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनमें तुम जिन की मदद चाहते हो? मैडम, जैसे कि मेरी पढ़ाई में मदद हो जाए. अगर मैं खेलना चाहूँ तो वो मेरे साथ खेल खेले. अगर मैं उसे कोई भी प्रश्न पूछूं तो मुझे उसका उत्तर मिल जाए. अगर मैं मनोरंजन करना चाहूँ तो वो मुझे कहानी सुना दे और वो मेरा बाजार या बैंक का काम भी कर दे. जिन तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक यंत्र है जिसको कंप्यूटर कहते हैं. ये हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा. ये कुछ ऐसा दिखाई देता है. अरे वाह मैडम, हम भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं. कृपया कंप्यूटर के बारे में हमको विस्तार से बताएं. मुझको खुशी हुई ये जानकर. अब मैं कंप्यूटर के बारे में आप सबको विस्तार से बताती हूँ. बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके उसके मैनिपुलेशन में हमारी मदद करता है और हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम भी कर सकता है. कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है. डेटा मैनिपुलेशन यानी सूचना का जोड़-तोड़ और स्टोरेज. शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावकारी और मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना. हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में और मरीजों का इलाज करना. ऑफिस में सूचना का स्टोरेज और प्रेजेंटेशन. ईमेल, चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मित्रों, व्यवसायिक संपर्क और कला से संबंध स्थापित करना. बैंकिंग में सुविधाजनक तरीके से मुद्रा का लेन-देन, यात्रा की जानकारी और टिकट बुकिंग. मनोरंजन के लिए खेल खेलना, गाने सुनना, पिक्चर देखना. विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज और तकनीकियों को जानने और समझने. और आर्ट और डिजाइन के क्षेत्र में. मैडम, मैंने टीवी में एक छोटा कंप्यूटर देखा था जिसको हम अपने पैर पर रखकर भी काम कर सकते हैं. बिल्कुल सही कहा तुमने विक्की. आकार के आधार पर कंप्यूटर 3 तरह के हो सकते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप. आइए अब इन विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को और अच्छे से जानते हैं. डेस्कटॉप, इसको टेबल के ऊपर रखकर उपयोग करते हैं. लैपटॉप, इसको टेबल के साथ साथ पैरों पर रखकर भी उपयोग कर सकते हैं. पाम टॉप, इसको हम अपनी हथेली पर रखकर उपयोग करते हैं. इसके कई प्रकार होते हैं जिनमें टैबलेट, स्मार्टफोन प्रमुख हैं. मैडम, हम कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं. हमको कहाँ से शुरू करना चाहिए? ज्ञान में ठीक है, लेकिन कंप्यूटर पर काम शुरू करने से पहले उसकी संरचना को जानना बहुत जरूरी है. कंप्यूटर मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अगर इनपुट यूनिट की बात करें तो इस भाग से कंप्यूटर में डेटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि. आउटपुट यूनिट प्रोसेस डेटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर आदि. और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है. जिस तरह से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू में लिए जाते हैं. आइए अब हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को इस फ्लो चार्ट से समझते हैं. पहले डेटा इनपुट,
फिर प्रोसेसिंग और अंत में निकलता है आउटपुट। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमको CPU पर मौजूद स्टार्ट बटन दबाना होगा। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के नाम विंडोज, लिनक्स आदि हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूजर तक पहुंचाती है। ये प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। ये सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसके ऊपर दिखाए गए डेस्कटॉप एरिया में माउस से क्लिक करने पर डेस्कटॉप खुल जाएगा। मैडम, इस जगह को डेस्कटॉप भी क्यों कहते हैं? बहुत सही प्रश्न पूछा तुमने। जैसे तुम कोई भी काम करने के लिए अपनी कॉपी किताब को मेज पर रखकर खोलते हो, उसी तरह से कंप्यूटर पर कोई भी फाइल किसी जगह पर खोलेगी, इसीलिए इसको डेस्कटॉप कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या तुम लोगों को पता है कि आजकल नेटवर्किंग का युग है जहाँ हर कोई हर किसी से टेक्नोलॉजी की मदद से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे घर के बहुत सारे सामान जैसे फोन, कंप्यूटर और टीवी भी आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है मैडम। ये सब कैसे संभव होता है? बच्चों, यह सब ICT की मदद से संभव हुआ है। यह ICT क्या होता है मैडम? प्यारे बच्चों, ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT अनेक सूचना और संपर्क तकनीकों का समागम है जिसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावशाली तरीके से खोजकर प्रस्तुत किया जा सकता है। ICT हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुत मददगार है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि। यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात लग रही है। ICT को उपयोग करने के लिए हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए मैडम? बच्चों, ICT का उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आओ अब हम इनको विस्तार से समझते हैं। भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, CD, पेन ड्राइव एवं संचार उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताती हूँ। ऐसे प्रोग्राम का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज, लिनक्स, पेंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस ORG, MS ऑफिस, गेमिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे GIS, फोटोशॉप आदि। अरे वाह, हमारे यहाँ पे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं। चलो ICT का उपयोग करें। जरूर करेंगे बच्चों, लेकिन पहले मैं तुम लोगों को ICT के कुछ मूलभूत विषयों की जानकारी दूंगी। आओ अब हम फाइल और फोल्डर के बारे में समझते हैं। किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डेटा को एक जगह पर संग्रहित किया जाता है जिसको फाइल कहते हैं, और इसी तरह से एक विषय की सारी फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से संग्रहित किया जाता है जिसको फोल्डर कहते हैं। बच्चों, हम अपनी खुद की फाइल्स और फोल्डर्स कुछ इस तरह से बना सकते हैं। आओ ये सब हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। कंप्यूटर में जिस जगह पर हम फोल्डर बनाना चाहते हैं उस जगह पर माउस पॉइंटर लाकर माउस के दाएं बटन को दबाने से एक मेन्यू खुल जाएगा जिसमें विभिन्न काम की लिस्ट होगी। फिर न्यू और फिर फोल्डर ऑप्शन को चुनें। इसके बाद आपको एक पीले रंग का फोल्डर दिखाई देगा जिस पर न्यू फोल्डर लिखा होगा। हम यह नाम मिटाकर अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने ICT नाम दिया। देखिए, हमारा फोल्डर तैयार है। अब हम इसका उपयोग अपनी फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। आओ बच्चों, अब हम फाइल बनाना सीखते हैं। फोल्डर पर माउस का पॉइंटर लाकर लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करके फोल्डर को खोल लें। उसके बाद फोल्डर के अंदर माउस पॉइंटर को लाकर राइट माउस बटन को दबाएं। मेन्यू में से न्यू और फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चुनें। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम की फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल पर माउस का पॉइंटर लाकर लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करें।
इससे आपकी फाइल खुल जाएगी। अब इस फाइल में अपनी ज़रूरत के डेटा को कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि फाइल को सेव कैसे करना है। फाइल को सेव करने के लिए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। फाइल सेव करने के दो विकल्प हैं, सेव और सेव एज। अगर फाइल का नाम या संग्रह स्थान बदलना चाहते हैं तो सेव एज पर क्लिक करें, वरना सेव पर क्लिक करें। इससे आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स में अपनी रुचि के अनुरूप स्थान और फाइल का नाम डाल सकते हैं। इस उदाहरण में फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर में राम के नाम से सेव किया गया है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को खोलकर देखें तो राम के नाम की फाइल दिखाई देगी। बच्चों, ये बातें याद रखें। किसी भी फाइल में दोबारा काम करने के लिए उस पर डबल क्लिक करके खोल सकते हैं और हमें फाइल का पाथ भविष्य में उपयोग के लिए याद रखना चाहिए। ओह, इसका मतलब हमको अपनी फाइल के संग्रह स्थल की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हाँ पिंकी, मैं तुम लोगों को संग्रह स्थल के बारे में कुछ और आवश्यक सूचना देती हूँ। संग्रह स्थल यानी स्टोरेज यूनिट, ये दो प्रकार की होती है। पहला, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। कंप्यूटर में सूचना पहले अस्थायी रूप से संग्रह होती है, जिसको बाद में जरूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं। ये भी दो तरह की हो सकती है, रैम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। और हमारा दूसरा स्टोरेज यूनिट है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। यहाँ पर सूचना स्थायी रूप से संग्रह होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। बच्चों, अब हम सीखेंगे कि कंप्यूटर पर विभिन्न ब्रशों से स्केचिंग और पेंटिंग कैसे करें। चलो बच्चों, इन मूलभूत जानकारी के बाद अब आईसीटी एप्लीकेशन माईपेंट पर काम करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि पुराने समय में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब आदि मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति गुफाओं की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर करते थे। ओह, कितना अच्छा होता अगर मैं भी एक चित्रकार होता। अरे पोगो, तुम ये ब्रश और रंगों की प्लेट लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं भी चित्रकारी सीखना चाहता हूँ, लेकिन चित्रकारी वाले अध्यापक आज नहीं आए हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ पोगो, क्यों नहीं। लेकिन मैं तुमको चित्रकारी कंप्यूटर पर माईपेंट सॉफ्टवेयर की मदद से सिखाऊंगी। ये माईपेंट क्या होता है? मैडम, इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं? ये एक सिंपल ड्राइंग और पेंटिंग का कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसको उपयोग करने के लिए हमें कंप्यूटर डेस्कटॉप पर मौजूद माईपेंट आइकन को क्लिक करना होगा, जिससे माईपेंट की पहली विंडो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बच्चों, हमें सबसे पहले इस स्क्रीन के कुछ मुख्य भागों से परिचित होना होगा। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, कैनवस, इस जगह पर ड्राइंग पेंटिंग किया जाता है। ब्रशेस, इसमें विविध प्रकार के ब्रश होते हैं। कलर पैलेट, इस पैलेट में हम अपना मनचाहा रंग चुन सकते हैं। चलो अब विभिन्न रंगों को मिलाने की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि पेपर पर हमको ड्राइंग या पेंटिंग करने के लिए ब्रश और रंगों के प्लेट की जरूरत होती है, उसी तरह से इस प्रोग्राम में भी हमको डिजिटल ब्रश की जरूरत होगी। माईपेंट में विभिन्न प्रकार के ब्रश दो वर्गों में उपलब्ध होते हैं, क्लासिक और एक्सपेरिमेंटल। हर वर्ग में विभिन्न प्रकार के ब्रश बहुत रोचक उद्देश्यों के लिए होते हैं। क्लासिक वर्ग के कुछ ब्रश इस तरह से दिखाई देते हैं। इन विविध प्रकार के ब्रशों से विविध तरह की रेखा कुछ इस तरह से खींची जा सकती है। इन मूलभूत जानकारियों के बाद अब हम तैयार हैं ड्राइंग करने के लिए, जिसके स्टेप्स इस तरह से होंगे। सबसे पहले ब्रश सेक्शन से मनचाहा ब्रश चुनने के लिए ब्रश के ऊपर माउस पॉइंटर लाकर बाएं बटन को दबाएं और उसके बाद रंगों के सेक्शन से मनचाहा रंग चुनने के लिए रंग के ऊपर माउस पॉइंटर लाकर बाएं बटन को दबाएं। अब कैनवस के ऊपर मनचाही जगह पर माउस पॉइंटर लाकर उसके बाएं बटन को दबाकर मनचाही दिशा में खींचकर माउस के बटन को छोड़ दें। आपकी मनचाही रेखा खींच चुकी होगी। क्यों आसान है ना? इस संदर्भ में ड्राई ब्रश से बनाए गए कुछ चित्र इस प्रकार हैं। वाओ, ये तो बहुत रोचक लग रहा है। हाँ वो सच में ये बहुत रोचक है। कुछ और मजेदार टूल इस तरह के हैं। टूलबार पर मौजूद इलिप्सेस एंड सर्कल्स टूल की मदद से इलिप्स एंड सर्कल बहुत आसानी से अपने मनचाहे ब्रश और रंग से खींचे जा सकते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। ब्रश वर्ग में मौजूद लॉन्ग ग्रास ब्रश की मदद से नीचे दिए गए घास का पैटर्न बनाया जा सकता है। इसी तरह से पत्तियां बनाने के लिए एक खास तरह का ब्रश जिसका शीर्षक लीव्स है, वह एक्सपेरिमेंटल ब्रश वर्ग में मौजूद होता है, जिससे पत्तियों का पैटर्न बनाया जा सकता है।
जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। मैडम ये तो बहुत पसंद आया। हाँ पोगो, आप अब तक जितना भी कुछ सीखा है उसकी मदद से एक दृश्य बनाए। देखो मैंने तुम्हारी मदद के लिए एक दृश्य बना भी दिया है। देखा बच्चों, हमारा आज का ये पाठ कितना रोचक और उपयोगी था। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ जिसमें ढेर सारी रोचक और उपयोगी जानकारियाँ होंगी। तब तक के लिए नमस्ते। Now we will see higher knowledge retention. Visual learning is more effective for students than regular chalk and talk. जो हम लोग कंप्यूटर पे या फिर स्मार्ट क्लास में जो बताते हैं इससे बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम लोग चौक और ब्लैक बोर्ड का या बात करके पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। दिस इज बिकॉज आवर ब्रेन प्रोसेसेस एंड रिटेन्स इमेजेस एंड वीडियोस फास्टर दैन टेक्स्ट। इसका ये मतलब है कि जो पिक्चर्स होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, ये सारी चीज़ को हम लोग का ब्रेन जल्दी कैच करता है। जो और हम लोग बात करते हैं या जो समझाते हैं उसको दे कैन एक्सेप्ट, उसको कम एक्सेप्ट करता है। एंड ICT यूज ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड्स विच बूस्ट लर्नर्स नॉलेज एंड द रिटेंशन एंड इंटरेस्ट लेवल। और इससे बच्चों का इंटरेस्ट है या जो भी सीखने वाले हैं उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। बट ICT education system is limited to resource-based teaching. Educator can also create interactive screen and off-screen tasks using ICT. इसका यूज करके हम लोग ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन टास्क भी बच्चों को दे सकते हैं। This allows students to explore fun, physical and mental activities. By learning, education, games, interactive museum tools and virtual labs are example of the few activities accessed through ICT tools. इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स भी करवा सकते हैं या कोई टूर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर वर्चुअल लैब में बहुत सारे चीज प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करवा सकते हैं। अब हम लोग का जब कोरोना या पैंडेमिक आया था उस समय हम लोग के सभी स्कूल बंद हो गए थे। जनरली सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए थे, तो आप लोग सभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। तो इससे हम लोग को कुछ बहुत सारे एडवांटेज भी थे, कुछ डिसएडवांटेज थे। तो राजकुमार सर कुछ एडवांटेज बताएंगे। Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to tell the advantages and disadvantages of online classes. As it had become compulsion for us to take online classes during the corona pandemic, there was no option, no alternative left for it. So this was a new experience for all of us. Generally, we are traditional teachers, those who are taking offline classes. We generally go to the class and use blackboard and chalk. And suddenly we were called to take the cell phone and use the modern technology. So some of the benefits and demerits which I have observed during the online classes, I am going to mention to you. First one is, it provides us home advantage. First thing it provides home advantage, means the teachers are at their home, the students are at their home, so they may feel convenient that we are at home. And so we are close to our relatives. So this may make everyone, teachers as well as the students, convenient, feel convenient and comfortable. Second thing is, some of the, especially in the urban areas, what happens that the students have to travel by transport and they are trapped in the traffic jam. So it is also a benefit that the students skip the traffic jams also. It saves time and money because we have to travel to school. Some of the time it may take time. Some of us are
have to travel for 1 hour almost to reach to school. So it may save 1 to 2 hours. Sir, for this trustable guidance, online classes may provide you trustable guidance through the teachers or our instructors or the in charges or principal. It also gives us instant doubt solution. As we know, during the online classes, what happens if some teachers are engaged in the morning, they may take the classes in the evening as well. Evening classes are also arranged. So this gives us instant doubt solution. This is the fifth benefit. And next one is increased convenience and flexibility. It becomes flexible. The classes can be exchanged. There can be collaboration level is increased during the online classes. Also, students and teachers can form network. This provides network opportunities. They form networking. They learn the networking opportunities during the online classes. Few demerits which I have observed are: first is sense of isolation. Some of the times what happens when we are teaching and we are not getting the feedback from the students, we feel that we feel like insane or we feel like mad. Why? Because we are not getting the feedback from the students, and it makes us feel that we are talking in the isolation. We are talking alone, lonely. There is no one and I am talking. Am I mad? It makes us feel like that. So some of the times we need to get the feedback also. For second point, demerit is self-discipline, because during the online classes, it becomes very difficult to check the homework, to get the homework. Students may cheat. What happens sometimes I had told the students to make a project, make a drawing. What they had done, they had taken the screenshot from the Google and sent it to me. And how can you recognize that they have taken the photo clip or they have taken the screenshot? So these things becomes difficult for us. So self-discipline is required for students. They have to maintain self-discipline. They have to be self-responsible by themselves. Next is additional learning for instructors. There is additional learning for instructors, for teachers. There is additional learning, something there is for new to learn. As we have gone through, we have used multiple sources. Zoom classroom we have used, other Google classrooms we have used different sort of tools in that. So by sharing ideas, we have got new in learning, new technology. Next is demerit is technical issue. Many of the classes are suspended due to technical issue, network problem. Many of the classes are suspended. This is a very common problem, network problem. So many of the classes are suspended when the weather is slightly disturbed. The classes are also disturbed. And fifth demerit is screen time causes trouble to eyes and some other disorders. When the students are close to cell phone, they are watching the cell phone, attending the classes, their eyes may affect, teachers as well, their eyes may affect. So this gives us some disorders also. Sixth is more time management required for teachers. It gives us challenge to manage the time. During the online classes, it becomes difficult for us to manage the time, sending the link on time and managing as per requirement. This becomes difficult for us. And one of the demerit or benefits, should I say, that there is no instructor or in charge to see the classes, how the classes are going on. So this one is demerit or benefit, I cannot say, but instructors are not there that they may give you advice to how to improve your class, or may not see the demerits, what's going on in the class. And so I can say that it allows the instructor to be more independent during the online class. It gives privacy to the teacher as well as to the students. But demerit is that self-responsibility of the teacher is increased. Self-responsibility of the student is increased. So there are a few merits and demerits.
all over when we talk about it during the limited time and the time that was of corona pandemic, it has given benefit to many who had been responsible for their job, for the teachers as well as students. Not only these, but also it was beneficial for corporate sector and also for us. We have taken in-house session and training during the online classes. So this has become beneficial for all of us. So benefit or demerit, it depends on us. Thank you all of you. तो हम लोग अभी सर जैसा कि बताएं, पैंडेमिक के समय हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। ये जो बच्चे हम लोग को होमवर्क सेंड करते थे उसको चेक करना बहुत ही मुश्किल काम होता था टीचर्स के लिए। सबको एक एक को सर्च करके चेक करना है, उसको करेक्शन करके फिर उनको सेंड करना, ये सब बहुत टफ वर्क होता था। और ऑनलाइन क्लास में हम लोग बच्चे को सही से देख नहीं पा रहे थे कि वो कौन कितना ध्यान दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, ये हम लोग को सही से पता नहीं चल पा रहा था कितना कौन से वर्क कर पा रहे हैं, या फिर वो बस कॉपी करके बस नोट्स भेज दे रहे हैं लिख के, ये सारा प्रॉब्लम। ज्यामितीय आकृति बनाना। ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी ज्यामितीय आकृति के बनने में धरातल निर्देशों को मापकर रिपीट कमांड द्वारा सरलता से बनाना और सरल गणना करना। प्यारे बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए हम अनुदेशों यानी इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं। आप सबने मेट्रो ट्रेन की सैर तो की होगी। इस यात्रा के अनुदेश इस क्रम में हैं। अपने क्षेत्र के पास वाले मेट्रो स्टेशन पहुंचे। यदि आपके पास यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड नहीं है तो गंतव्य स्टेशन जाने के लिए टोकन खरीदें। यदि आपके पास कोई सामान है तो उसे सुरक्षा जांच मशीन में रखकर स्वयं की सुरक्षा जांच करवाएं। स्मार्ट कार्ड या टोकन प्रवेश द्वार पर चिन्ह अनुसार लगाकर प्रवेश करें। गंतव्य स्टेशन के अनुसार प्लेटफॉर्म की ओर सीढ़ियों या लिफ्ट से जुड़ें। स्टेशन पर बनी पीली रेखा के पीछे खड़े रहें। मेट्रो ट्रेन के आने पर संयम का पालन करते हुए उतरने वाले यात्रियों के उतरने के बाद पंक्ति का पालन करते हुए मेट्रो ट्रेन में चढ़ें। गंतव्य स्टेशन की घोषणा सुनते ही निकास द्वार पर खड़े हो जाएं और स्टेशन पर उतर जाएं। फिर हम स्टेशन पर अपने गंतव्य स्थान के अनुसार निकास द्वार की ओर जाकर चिन्ह अनुसार अपना स्मार्ट कार्ड छोड़कर या टोकन डालकर निकास कर सकते हैं। बिल्कुल सही ज्ञान। इस प्रकार हर कार्य को करने के लिए हमें अनुदेशों का पालन करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर बिजली की मदद से चलता है और जरूरत न होने पर हमें बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। अपने शिक्षक की सहायता से कंप्यूटर को शट डाउन करने के अनुदेश क्रमानुसार नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखें। बच्चों, कंप्यूटर से काम लेने के लिए भी हमें इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश देने पड़ते हैं। क्रमानुसार लिखे अनुदेशों को प्रोग्राम कहते हैं। किसी कार्य को हल निकालने के लिए क्रमानुसार अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। आइए अब जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में। जिस तरह अपनी बात समझाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर से काम लेने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग की भाषा का प्रयोग करते हैं। आइए हम भी एक सरल प्रोग्रामिंग की भाषा लोगों को विस्तार से सीखें। आइए देखें कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो को कैसे शुरू करें। सबसे पहले यहाँ पर लोगो टाइप करें, फिर शुरू करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आइए अब करते हैं लोगो से परिचय। लोगो शुरू होने पर त्रिभुज आकार का टर्टल दिखाई देता है। टर्टल नाम ही क्यों? इसकी प्रेरणा 1940 में शिक्षा हेतु बनाए गए टर्टल रोबोट से ली गई है। आइए अब इनपुट बॉक्स में इंस्ट्रक्शंस यानी अनुदेश लिखें। लोगो में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन एक कमांड होता है। कमांड को चलाने यानी एग्जीक्यूट के लिए एग्जीक्यूट बटन या कीबोर्ड से एंटर दबाएं। आइए अब कमांड विंडो में कमांड देखें।
कमांड्स के क्रमानुसार टर्टल घूमता या रेखा बनाते चलता है। आइए अब टर्टल को चलाएं। एक्टिविटी 1, क्या आप मधुमक्खी को फूल तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं? इस भूलभुलैया से निकलने के लिए आप कभी दाएं, कभी बाएं और कभी सीधे चले होंगे। कुछ इसी प्रकार लोगों में टर्टल चलता है। टर्टल के चलने के माप की इकाई पिक्सल है। पिक्सल? ग्राफ पेपर की तरह हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन छोटे छोटे वर्ग से बनी होती है जो इमेज बनाने में मदद करते हैं, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। सबसे छोटे प्रकाशित होने वाले वर्ग को पिक्सल कहते हैं। जिस तरह मानी या सुंदर डिजाइन जूट के कपड़े पर छोटे छोटे वर्ग में धागा पिरो के बनाए है, क्या इसी तरह? शाबाश पिंकी, ये एक अच्छा उदाहरण है। लोगों में मुख्यतः दो तरह की कमांड है। पहला है चलो यानी मूव कमांड, जो कि आगे चलने के लिए और पीछे चलने के लिए होता है। दूसरा है मुड़ो यानी टर्न कमांड, जो कि बाएं मुड़ने के लिए और दाएं मुड़ने के लिए होता है। आइए अब मूव कमांड को विस्तार से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो खोलें, इनपुट विंडो में FP80 टाइप करें, आउटपुट नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में ड्रॉ करें। आउटपुट एरिया को क्लियर करने के लिए और टर्टल को स्क्रीन के बीच में लाने के लिए इनपुट विंडो में CS टाइप करें और एंटर की प्रेस करें। CS, C से फिंगर और S से स्क्रीन। टू मूव बैकवर्ड इन स्ट्रेट लाइन यानी पीछे चलने के लिए। बैक डिस्टेंस यानी दूरी, B के डिस्टेंस यानी दूरी। उदाहरण BK10। इनपुट विंडो में BK80 टाइप करें और आउटपुट नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में ड्रॉ करें। टर्न यानी मुड़ने के माप को एंगल कहते हैं, इसलिए माप की इकाई डिग्री है। किसी भी गोल आकार में 360 डिग्री होते हैं। एंगल के साइज को प्रोट्रैक्टर से नापा जाता है। टू टर्न लेफ्ट यानी बाएं मुड़ने के लिए इनपुट विंडो में LP90 टाइप करें, आउटपुट नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में प्रोट्रैक्टर की मदद से एक्यूरेट एंगल ड्रॉ करें। टू टर्न राइट यानी दाएं मुड़ने के लिए इनपुट विंडो में RT45 टाइप करें और आउटपुट नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में प्रोट्रैक्टर की मदद से एक्यूरेट एंगल ड्रॉ करें। आइए अब ज्यामितीय आकृति बनाएं। लेट अस ड्रॉ ज्योमेट्रिकल शेप्स। इस आकृति का नाम है स्क्वायर यानी वर्ग। इसकी भुजाओं की संख्या 4 है। इसकी भुजाओं का माप बराबर होता है। एसेस यानी कोनों पर एंगल्स का माप यानी मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। कोनों का राइट एंगल यानी समकोण बन होता है। ऊपर दिए गए अनुदेश के अनुसार चलिए। स्क्वायर बनाने के लिए नीचे दी गई लोगो कमांड इनपुट बॉक्स में टाइप करके एग्जीक्यूट करें। स्टेप 1, 80 पिक्सेल्स आगे बढ़ाएं। FP80। स्टेप 2, 90 डिग्री राइट टर्न लें, RT90। स्टेप 3, 80 पिक्सेल्स आगे बढ़ें, FP80। स्टेप 4, 90 डिग्री राइट टर्न लें, RT90। स्टेप 5, 80 पिक्सेल्स आगे बढ़ें, FP80। स्टेप 6, 90 डिग्री राइट टर्न लें, RT90। स्टेप 7, 80 पिक्सेल्स आगे बढ़ें, FP80। स्टेप 8, 90 डिग्री राइट टर्न लें, RT90। HT कमांड टाइप करें। HT कमांड से टर्टल छुप जाता है। H से हाइट और T से टर्टल। ST कमांड टाइप करें। ST कमांड से टर्टल फिर से दिखने लगेगा। H से शो और T से टर्टल। होम कमांड की कॉलम टाइप करने से टर्टल स्क्रीन के बीचों बीच में हो जाता है। प्रैक्टिस 1, नीचे दी गई शेप यानी आकृति को पहचान कर प्रश्नों के उत्तर दें। शेप यानी आकृति का नाम। नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या। क्या सभी भुजाएं बराबर हैं? एजेस पर एंगल्स का मेजरमेंट क्या है? किस तरह के एंगल्स कोनों पर बन रही हैं? सही उत्तर पर निशान लगाएं। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, राइट एंगल, सम कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ऊपर दी गई शेप यानी आकृति को बनाने के लिए लोगो प्रोग्राम बनाएं। साइज की मेजरमेंट अपनी पसंद से लें और नीचे दी गई जगह में लिखें। क्या आप सही तरह से आकृति बना पाए? हाँ या नहीं? क्या टर्टल दिख रहा है? हाँ या नहीं? टर्टल को छुपाने के लिए आप क्या कमांड लिखेंगे?
प्रयोग से ऊपर दी गई आकृति बनाएं। प्रैक्टिस 2 सेमी सर्कल को रिपीट कमांड की मदद से बनाएं और कमांड नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखें। प्रैक्टिस 3 रिपीट 5 FD120 RD144 कमांड से क्या आउटपुट मिलेगा, नीचे दिए गए स्थान में आउटपुट बनाएं। एक्टिविटी 7 एक्टिविटी 3 में हमें स्क्वायर बन बनाया था जिसकी साइज यानी भुजाओं का मेजरमेंट 80 पिक्सल था। चलिए उसका एरिया यानी क्षेत्र और पेरीमीटर निकालें। वर्ग का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है साइड इनटू साइन। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला है 4 इनटू साइन। कंप्यूटर में गुणा करने के लिए कीबोर्ड से स्टार दबाएं। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए इनपुट बॉक्स में नीचे कमांड टाइप करें। फिर 80 इनटू 80 या 80 इनटू 80 और एंटर या एग्जीक्यूट दबाएं। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए इनपुट बॉक्स में नीचे दी गई कमांड टाइप करें। फिर 4 इनटू 80 या 4 इनटू 80 और एंटर या एग्जीक्यूट दबाएं। प्रैक्टिस 4 एक्टिविटी 6 और P1 में बनाई गई शेप्स का एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए कमांड्स लिखें। मित्रों, लोगों की प्रिंट या PR कमांड से हम मुश्किल गणना भी झटपट कर सकते हैं। बच्चों, इन बातों को हमेशा याद रखें। लोगो स्टैंड्स फॉर लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। क्रमानुसार लिखे अनुदेशों को प्रोग्राम कहते हैं। किसी कार्य का हल निकालने के लिए क्रमानुसार अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। कंप्यूटर से काम लेने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। लोगों में प्रत्येक अनुदेश एक कमांड होता है। कमांड्स के क्रमानुसार टर्टल घूमता या रेखा बनाते चलता है। टर्टल के चलने के माप की इकाई पिक्सल है। सबसे छोटे प्रकाशित होने वाले वर्ग को पिक्सल कहते हैं। लोगों में मुख्यतः 2 तरह की कमांड है, मूव कमांड और टर्न कमांड। आगे चलने के लिए फॉरवर्ड और पीछे चलने के लिए बैक, बाएं मुड़ने के लिए लेफ्ट और दाएं मुड़ने के लिए राइट। लोगों से ज्यामितीय आकृति बनाई जा सकती है। लोगो शुरू होने पर त्रिभुज आकार का टर्टल दिखाई देता है। लोगों की PR या प्रिंट कमांड से कैलकुलेशंस यानी गणना भी की जा सकती है। ST कमांड से टर्टल छुप जाता है और ST कमांड से टर्टल फिर से दिखाई देने लग जाएगा। CS कमांड स्क्रीन को क्लियर करता है और टर्टल को स्क्रीन के सेंटर में ले जाता है। रिपीट कमांड इंस्ट्रक्शंस को एक तय संख्या अनुसार एग्जीक्यूट करता है और प्रिंट कमांड सिंपल कैलकुलेशंस यानी सरल गणना करने में सहायता करता है। स्वयं करें। लोगो प्रोग्रामिंग की मदद से नीचे दी गई शेप्स बनाएं। एंगल 1 एंड एंगल 2 135 डिग्री। नीचे दी गई कमांड को एग्जीक्यूट करें और आउटपुट रिक्त स्थान पर बनाएं। रिपीट 12 रिपीट 4 FD100 RD90 RD30। अगर प्रिंसिपल 50,000 वेट 5 और टाइम 2 लगते हैं तो प्रिंट कमांड की सहायता से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। देखा बच्चों, हमारा आज का ये क्लास कितना दिलचस्प और उपयोगी था। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ जिसमें ढेर सारी दिलचस्प और उपयोगी जानकारी होगी। तब तक के लिए नमस्ते। यहाँ पर आप लोग ने देखा ICT का हम लोग यूज़ करके कितने सारे चीज़ जानकारी लिए हैं और ये सब का यूज़ आप लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर आप लोग देखें IPO सिस्टम, इसमें देखें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट यूनिट। इसमें इनपुट यूनिट में क्या क्या है आप लोग सब बताइए, क्या क्या होता है इनपुट सिस्टम में, क्या क्या होते हैं? Myself, Resam Balakumari. I am going to answer a question of Dipti ma'am. Thank you ma'am for giving me this opportunity. Input devices. We use input devices for input our instruction in computer. Commonly we use mouse and keyboard in input devices. We type our text
by keyboard, and we click, select and open the program in computer by clicking mouse. Mouse is a handy device. All knows that my mouse is a handy device. It looks like mouse and it is very useful device in computer system. It is very common, but it is very useful. It can be wireless also and it can be with wire also. In mouse there are three buttons: primary mouse button and secondary mouse button. Okay? We use primary mouse button for click, select and open the program in desktop. And we use the right button for right click to open pop up and down menus that is given in system for many types of instruction whatever be used by users. So many lots of devices in input like scanner and lots more. Sorry. Input devices help us to give instruction in computer and output devices help us to get result by giving us those instructions. So it is input devices and output devices described briefly. Thank you.